Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you to this new class which is quadrilaterals. We have discussed lines and angles, triangles, and now we are discussing quadrilaterals. तो quadrilaterals, what is quadrilateral? देखो quad का मतलब होता है four. So quadrilateral is basically a closed figure having four sides. Four sides will definitely have four angles as well. आप कैसे भी four sides को draw कर लो. This is going to have they are going to have four angles as well, right? So they are called quadrilaterals. Now if you make changes in the condition of sides or their angles of quadrilateral, तो आपको उसके according ही अलग अलग नाम के quadrilaterals मिलते हैं. You will have trapezium, you will have parallelogram, you have rhombus, you will have rectangle, square, what, and so on. We are going to discuss all of them. Okay, so quadrilateral clear. Quadrilaterals are clear. Now sum of interior angles of quadrilateral is equal to 360. ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Sum of all the angles of a quadrilateral is equal to what? 360. किसी भी quadrilateral के चारों एंगल का सम करोगे you are going to get 360 degree. Now let's start with one by one. Yeah, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा आपको इतने टाइप्स का quadrilateral पता होना चाहिए, because in question sometime you may not get diagram, you may get name of the quadrilateral, that okay, a square, a rectangle, so you should understand what is rectangle and how do you deal with the questions of rectangle. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. क्वेश्चंस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. So if you already aware about the concepts, you can skip this. You can go to the practice questions. लेकिन मैं एडवाइस करूँगा यार, देखो it will be easy for us to communicate if we are going to use the same terms. तो सुन लो 2x करके सुन लो, क्या फ़र्क पड़ता है. स्क्वायर्स, यहाँ पे क्या स्क्वायर्स सबको पता है. स्क्वायर यू हैव ऑल फोर साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड की बात नहीं. अच्छा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेलल आपको पता है व्हाट आर पैरेलल. तो पैरेलल साइड्स आर दे नेवर इंटरसेक्ट, राइट. तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, all sides are equal and all angles are 90 degree. Angles 90 degree होंगे, ये भी important है. Okay, because we have one more figure which is rhombus. Now in rhombus all four sides are equal, opposite sides are parallel. ये देखो, ये same match कर रहा है यहाँ पे, right? But the angles are, all angles are not 90 degree. We'll talk about this. Let's finish square first. तो स्क्वायर का आपको समझ में आया. तो एंगल्स आर 90 डिग्री, साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है. डायगोनल्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायगोनल्स के बारे में पता होना चाहिए. डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट करो. आई होप ऑल ऑफ योर मेकिंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स. देखो, मैं आपको एट लास्ट इन सब के नोट्स दे दूंगा, लेकिन जो मज़ा और जो कनेक्शन आपको खुद के हैंड रिटन नोट से आएगा, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स. तो नो मैटर हुज नोट्स आर यू रिफरिंग इट टू, it will not give you that sense of fulfillment. So make sure that you have your own handwritten notes. Diagonals of square, bisectors, they bisect each other same length and meet at 90 degree. So we can also say the diagonals क्या होता है. diagonals क्या होता है बताओ. When you join the opposite vertex of this not opposite vertex but adjacent को छोड़ के आप कोई भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करो. ध्यान से सुनना, एडजेसेंट पॉइंट्स को छोड़ के आप किसी भी दो पॉइंट को, किसी भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करो, यू विल गेट डायगोनल. ओके, डायगोनल जरूरी नहीं कि एकदम अपोजिट ही होना चाहिए. ओके, सो दे आर डायगोनल्स, दे आर इक्वल एंड दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई कॉल इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लिख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड इन द ट्रायंगल. आपको याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डिस्कस किया है. या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने ट्रायंगल में डिस्कस किया. आई डोंट रिमेंबर द लेक्चर नंबर, बट हम लोगों ने डिस्कस किया. आपको फिर से बता दूं क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो फॉर एनी लाइन सेगमेंट, लेट्स से ए बी, if you have another line which is bisecting, that means dividing into two equal half and also forming an angle of 90 degree, this line, this L1 is perpendicular bisector for line segment AB. Okay, याद रहेगा.
तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, और क्या है? अच्छा, एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया इज व्हाट? साइड स्क्वायर। साइड आपका कुछ भी हो, कहीं कहीं पे आपको ए स्क्वायर देखने मिलेगा, वेयर ए इज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, इसके बाद एक पॉइंट और आता है, पैरामीटर। पैरामीटर, अब पैरामीटर, यार पैरामीटर समझो आप। पैरामीटर का मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला आपको। क्यों नहीं बताने वाला बताओ? बिकॉज पैरामीटर का डेफिनेशन समझो। पैरामीटर्स डेफिनेशन इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर फॉर एनी डायग्राम फॉर दैट मैटर, any diagram for that matter, that is what? Sum of all sides of any closed loop। किसी भी क्लोज लूप का आप जितने भी साइड्स हैं उनका सम करो, you will get what? Perimeter of that particular figure। So you tell me, if I consider the side of square as AAA, so in that case what should be the perimeter? A plus A plus A plus A, कितना होना चाहिए perimeter? It should be 4A, right? If you want to write this as the formula, लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? एक और लाइन लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आई एम सॉरी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ध्यान दो यहाँ पे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ये इसके इक्वल है और ये आपके इसके इक्वल है। तो टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी होगा। ओके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यस, इसमें भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री। सो द ओनली डिफरेंस विच वी हैव इज व्हाट? दी साइड्स, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये अगर हमारा, इसको हम लोग अगर लेंथ बोल सकते हैं, इनको उसको हम लोग ब्रेड्थ बोल सकते हैं। ओके, दिख रहा है आपको? लेंथ एंड ब्रेड्थ। थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, लिख लो यार, लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्योमेट्री इज फुल ऑफ प्रॉपर्टीज एंड थियरम्स। ज्योमेट्री इज फुल ऑफ प्रॉपर्टीज एंड थियरम्स, और इसमें होता है क्या है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया है। यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। If you look at when we solve previous year questions, you will get to know that you get a lot of questions in exam which has more than one concept. So only based on a specific concept you will get a question, it's very less likely to happen. Yeah, so properties theorem को अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना है, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। Now you have the diagonals। ये diagonals की बात करते हैं हम लोग। डायगोनल्स की बात अगर हम लोग करें, फॉर रेक्टेंगल दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे हैव सेम लेंथ। देखो स्क्वायर के डायगोनल और इसमें क्या डिफरेंस है? दे मीट एट 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री वाला पॉइंट नहीं है। या दैट मीन्स डायगोनल्स आर ओनली इक्वल एंड बाइसेक्टर, दे आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्टर तो दिखेंगे बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप खुद देख सकते हो, देखो एक जो स्मॉलर साइड के का एंगल है और जो लॉन्गर साइड का एंगल है, तो लॉन्गर साइड एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ द लॉन्गर साइड इज बिगर एंड एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, राइट? तो आपको ये ध्यान में रखना है। एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इजी है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, या प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। पेरीमीटर क्या होगा? आप बताओ, पेरीमीटर क्या होगा? इफ आई से द लॉन्गर साइड लेंथ इज L एंड द स्मॉलर इज B, तो इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर हियर? आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, राइट? मतलब आप L प्लस B प्लस L प्लस B, देयर आर 2 L's एंड 2 B, राइट? इसको आप क्या बोल सकते हो? आप ये भी बोल सकते हो, दिस इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B। ये बन गया फॉर्मूला। या बट आपको क्या करना है? फॉर्मूलेस को जितना कम हो उतना कम उनका यूज़, इस्तेमाल और फॉर्मेशन करना चाहिए, ज़्यादा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ एप्टीट्यूड ऑल अबाउट। ओके, फिर भी अगर लिखना चाहते हो पेरीमीटर का फॉर्मूला,
For rectangle you can write 2l plus b, right? पैरेललोग्राम। अब इस रेक्टेंगल को आप ऐसे देखो, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हम लोगों ने पकड़ के अपोजिट कॉर्नर्स, ऐसे अपोजिट एडजस्ट नहीं, अपोजिट कॉर्नर्स पकड़ के मैं थोड़ा सा ड्रैग किया पैरेलल लाइन में, ऐसा अपोजिट नहीं, पैरेलल इसको ड्रैग किया थोड़ा सा। ओके, सो व्हाट विल यू गेट हियर? रोम्बस। देखो ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैंने सर स्ट्रेच कर दिया है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो, एवरीथिंग इज सेम। सो टू पेयर ऑफ लाइंस आर इक्वल। आपको यहाँ पे भी देखो, आपने स्ट्रेच किया है तो जो साइड्स है वो तो अभी भी इक्वल है, साइड्स आर स्टिल इक्वल, राइट? So two pairs of lines are equal and opposite sides are parallel because I have stretched that two corners parallelly. I have not dragged it in some random angle, parallel. Okay. भी आप इसको ऐसा अज्यूम करो, जिस ट्रैक पे वो थे, ये दो ट्रैक है, इस दो ट्रैक को मैंने आगे बढ़ा दिया उसी लाइन में, राइट? ओके, टू अपोजिंग पेयर ऑफ इक्वल एंगल। अच्छा, क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको 90 डिग्री नहीं मिलने वाला, यू विल गेट द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे लिख लो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल फॉर पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, दे आर डायगोनल्स आर व्हाट? डायगोनल्स क्या है? एंगल, दे आर ओनली बाइसेक्टर। देखो कैसे कम होता जा रहा है। स्क्वायर में बाइसेक्टर है, सेम लेंथ है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। रेक्टेंगल में बाइसेक्टर है, सेम लेंथ है, 90 डिग्री नहीं बनाता। पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर है बस। ओके, एरिया ऑफ द एरिया इज व्हाट? हाफ diagonal 1 into diagonal 2. Area is what? Half of diagonal 1 into diagonal 2. या अच्छा, आप बताओ उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए? फिर से ऐसा बोलते हैं, ये स्मॉलर साइड को मैंने b बोला, लॉन्गर साइड को l बना। इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए? पैरामीटर इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द साइड्स। Again, here you have b, l, and then this will be definitely b because opposite sides are same, equal, and this should be l. So इसका भी पैरामीटर होना चाहिए twice of l plus b, isn't it? Yeah, that is for parallelogram. Now we have rhombus. Rhombus का रिलेशन स्क्वायर्स है, rhombus का रिलेशन स्क्वायर्स है। The way you have formed parallelogram by dragging, stretching the opposite corners of rectangle, same you can do with square as well. आप square के opposite corners को drag या stretch करोगे, you will get a condition of rhombus where opposite sides are equal and parallel. Sorry, I would say all sides are equal and parallel. Sorry, all sides are equal and opposite sides are parallel. Parallel opposite side ही हो सकती है यार, tip of tongue. Okay, so all four sides are equal and opposite sides are parallel. अच्छा, अब यहाँ पे can I say all the angles are 90 डिग्री? देखो ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इसको थोड़ा विजुअलाइज भी करोगे, you will understand that all angles are not equal, but the opposite angles are same. Opposite angles are same. ओके अच्छा, इस एंगल के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट एंड आंसर दैट। what do we say about the angles? Two opposite pairs of angles are equal, opposite angles are equal. Okay, bisect each other at 90 degree. Diagonals क्या करते हैं? Bisect each other at 90 degree. Bisect का मतलब है they divide into two equal, okay, two equal parts. Bisect का मतलब होता है divide into two equal parts. इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। Bisect मतलब by is 2, quad is 4, okay, tri is 3. तो bisect section, तो दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। एरिया सेम रहेगा। देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड सेम है और रोम्बस में यू हैव ऑल द फोर साइड सेम। बाकी कोई रोम्बस और पैरेललोग्राम में देयर इज नो मच डिफरेंस, तो एरिया इज सेम। इनफैक्ट
ये फॉर्मूला एरिया का आप रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी लगा सकते हो। हाफ ऑफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, बिंदास लगाओ। ये फॉर्मूला आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी चलेगा। ओके, अच्छा, इफ आई से द साइड इज ए, सो इफ वन साइड इज ए, ऑल साइड शुड बी इक्वल ए। तो पेरीमीटर क्या होना चाहिए? यू हैव 4 साइड्स, ऑल ऑफ देम आर ए। करेक्ट? क्लियर? यस, नो? इजी है। ओके, अब क्वेश्चन मेरा ये था एंगल को लेके कि सपोज इफ आई से दिस इज योर एंगल एक्स और ये वाला आपका एंगल है वाई, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई? एंगल एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, बता सकते हो क्या? दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट अ फॉर्मूला? नो। हमने क्या सीखा है? फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल all the four angles, sum of all four angles is equal to 360 degree. Sum of all four angles equal to 360 degree. So now if I say this is x, then this opposite should also be x and this should also be y. Correct? So you have 2x and 2y. So if 2x and 2y, if you अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 2x plus 2y. This is sum of all angles. आप इसको क्या बोलोगे? 360. Now if you divide by 2 both side, what will you get? X plus y equal to 180 degree, right? X plus y equal to 180 degree. Okay, formula? No. Property? No. याद रख सकते हो on you, but you should understand logically क्या हो रहा है। काइट कैसा दिखेगा? एडजेसेंट साइड जो है, दो एडजेसेंट साइड, यहाँ पे ये इक्वल है और ये तो नहीं इक्वल है, ऐसा दिख रहा है। ओके, so two pair of equal sides and the equal sides are not opposite ones. Yeah, one opposite pair of angle is equal, one pair, एक ही पेयर इक्वल होगा। कौन सा होगा? ये वाला। देखो, लॉन्गर साइड और स्मॉलर साइड के बीच का एंगल, ये लॉन्गर साइड और स्मॉलर साइड के बीच का एंगल, ये इक्वल होगा। ये बाकी का ये जो पार्ट है ये इक्वल नहीं होगा। ऑब्वियसली आप देखो ना, नहीं होगा। तो काइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द डायग्राम। डायगनल्स क्या होगा? दे मीट एट 90 डिग्री। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देन वी कैन नॉट कॉल दैट टू बी दिस क्वाड्रिलेटरल शेप टू बी काइट। तो ये आपका डायगनल ऐसा मिल रहा है। सो दे आर मीटिंग एट 90 डिग्री। इनफैक्ट थोड़ा सा और ध्यान दो, जूम करूँ क्या? जूम कर दो थोड़ा सा और ध्यान दो इस पर। जो स्मॉलर डायगनल है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बाय द बिगर डायगनल। यस, बिकॉज सी, ये अगर आप इसको पॉइंट मेंशन करो, ए बी सी डी, तो आप देखोगे अच्छा वर्टेक्स तो हम लोग कैपिटल लेटर में करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट यू नो स्टैंडर्डाइज वे में चलो तो अच्छा है। ए बी सी डी अगर आप देखोगे, सो ए बी डी ट्रायंगल कौन सा देखना है आपको? ए बी डी। क्या ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। सोचो, दीज टू साइड्स आर इक्वल, दिख रहा है आइसोसेलेस। अरे ये क्या किया मैंने, ट्रायंगल लिखना था तो ट्रायंगल का साइन नहीं है, मैंने उसी को ये बना दिया। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल का इफ यू हैव दिस हाइट, ये परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, सो दिट विल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल हाफ। So basically, you can say in case of diagonal, if in case of diagonal, they meet at 90 degree, true, and AC is perpendicular bisector of BD. BD कौन? Smaller diagonal. Yeah, बोल सकते हैं सर? Bisector, I hope you understand the meaning of the bisector now. AC is perpendicular bisector of BD.
आप BD को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, बिकॉज AC इज अ लॉन्गर साइड. यू कैन सी एक साइड उसका बड़ा है, एक पार्ट इज वन पार्ट. लाइक अगर इसको मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को O बोलता हूँ तो OC इज लॉन्गर देन OA, राइट. सो हम लोग BD को एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, पर AC को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोल सकते हैं ऑफ BD, बिकॉज AC डिवाइड्स BD into two equal half. AC is making an angle of 90 degree, so AC is perpendicular on BD. AC is also bisector of BD, so we can say perpendicular bisector. ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, राइट. ठीक, ये हो गया. नेक्स्ट इज perimeter. Perimeter क्या? These sides are the adjacent sides are equal. Let's say A and this is your BB, right? तो क्या करोगे आप? उसको भी ऐसे लिखोगे कि नहीं? ऐसे लिखोगे कि नहीं? 2A plus B ऐसा लिखो, because your A is repeating twice and B is also repeating twice, right? ठीक. Now you got trapezium. Trapezium क्या होता है? Trapezium में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? Two sides are this one pair of sides are equal, parallel. वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. जैसे इसको मैंने कहा L1 और इसको कहा मैंने L2. दीज साइड्स आर पैरेलल, इक्वल नहीं, सिर्फ पैरेलल है. द अदर टू साइड्स जैसे ये A और B है, आई मीन दे हैव नो रिलेशन, दे हैव नो रिलेशन. ओके, so only one pair of parallel sides. Okay, no angles are equal. We can definitely not define because बाकी के A और B का कोई कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है नहीं. नो स्पेशल प्रॉपर्टी, नो स्पेशल प्रॉपर्टी. एरिया, इसका एरिया समझो, इसका एरिया समझो. इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है हाफ हाइट. हाइट क्या होगा? हाइट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the parallel sides. In this case, in case of trapezium, height is nothing but a perpendicular distance between the parallel sides. Okay, ये height है आपका into the line 1 plus line 2. ये line 1 line 2 कौन है? The parallel lines of this quadrilateral of the trapezium. Okay, perimeter आप क्या करोगे? If the non parallel side, if I mark them as A and B, so perimeter क्या होगा? A plus B plus L1 plus L2. इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है? Do you find this as a formula? No. It's a definition of perimeter. So perimeter formula is what? Sum of all the sides. Yep. Isosceles trapezium. Isosceles trapezium. Iso मतलब दो sides equal. You have isosceles angle as well, right? Isosceles trapezium, two sides are equal. So here you will find non-parallel sides. These non-parallel sides to be equal. और ये पैरेलल साइड्स है, ये क्या है? L1 L2 ऐसा ही. ओके, वन पेयर ऑफ इक्वल साइड A and A, one pair of parallel sides, and the parallel sides are not equal. Parallel sides are not equal in trapezium, वो ध्यान रखना. टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स मिलेगा आपको यहाँ पे. ये दोनों एंगल, सॉरी, ये दोनों एंगल, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स इक्वल मिलेंगे. ओके, diagonals, they bisect each other and they have same length. Area is same. Perimeter, you can have a formula for perimeter. Yeah, this is about isosceles trapezium. Next is irregular. अब irregular का तो कुछ भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है? irregular, there is nothing same. आप you can't define anything. There is no common thing. There is no property here. Irregular. Okay. There is one more quadrilateral. One is that's called cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral मतलब you have a quadrilateral inside the circle. Circle circumscribe the quadrilateral. Circumscribe the quadrilateral.
ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. Now here the only property you can make here is the sum of opposite angles is equal to 90 degree. और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है. You cannot define the diagonals or anything else, but you can say the sum of opposite angles x and y, and these two sum of opposite angles there, that's equal to 180 degree. उसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का हम लोग नहीं बोल सकते. ओके, दिस इज सर्कमस्क्राइब बाय अ सर्कल. ओके, quadrilateral ABCD. Yeah. So these are all basics of quadrilaterals. इसके questions हम लोग solve करेंगे. But this lecture was all about understanding the quadrilaterals, type of quadrilaterals and their properties. So this is it in today's lecture. My name is Shyam Manavat signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Bye bye.